السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، یہ بات ہم سبوں کو معلوم ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن و حدیث کی دلیلیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حج صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلمہ اعلیٰ سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، نیز آیت کے آخری کلمات وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ میں تارک حج کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی حج کی فرضیت اور اس کی تاکید خوب واضح ہوتی ہے۔ بنابر جو شخص حج کی فرضیت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ بالاجماع کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ حج کی آیت نمبر 22 ہے، یعنی اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 8 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں 16 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، صحیح مسلم 1337 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ یہ تمام حدیثیں اور قرآنی آیتیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے، اور اگر کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اس کے تعلق سے علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ آج کے اس آڈیو میں ہم مختصراً حج و عمرہ کے فضائل کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرتا ہے تو وہ کون سے فضائل ہیں جن سے وہ محظوظ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت حج اور عمرہ کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور حج مبرور کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور کا جنت کے سوا کوئی دوسرا بدلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 1773 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 1349 نمبر کی حدیث ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی نیکی کے کام زیادہ کرنے لگ جائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔ یہ پہلی فضیلت ہوئی کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس میں بھی حج مبرور کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو حج سے پہلے انسان سے جس قدر بھی گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس حج کے طفیل
तमाम गुनाहों पर आफ़ू का कलम फेर देता है। अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी तो मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं आपकी हाथ पर बयात करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया, लेकिन अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हाथ खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्र तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन सी शर्त? मैंने कहा मेरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहा। यानी ऐ अम्र, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम उन तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है जो उससे पहले के थे, और हिजरत उन तमाम गुनाहों को साक़ित कर देती है जो हिजरत से पहले अंजाम दिए गए थे। इसी तरह से हज उन सब गुनाहों को साक़ित कर देता है जो हज से पहले अंजाम दिए गए थे। ये रवायत सही मुस्लिम में 121 नंबर हदीस है। इसी तरह से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अदीमुल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा तनफ़िल किबरा खुबुसल हदीद। कीरा खुबुसल हदीद यानी हज और उम्रा बराबर करते रहा करो, क्योंकि ये दोनों फ़क़्र व फ़ाक़ा को ख़त्म करते हैं और गुनाहों को मिटाते हैं, जिस तरह भट्ठी लोहे के ख़राब हिस्से को अलग कर देती है। यह सुनन मुअजम तबरानी यानी अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी और इसी तरह से दारक़ुतनी की रवायत है। दारक़ुतनी ने इसे सही करार दिया है और शेख अलबानी ने सहीहा में 1185 नंबर हदीस पर इसे सही करार दिया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कीरू ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़त वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरती सवाबुन इल्लल जन्नह। यानी हज और उम्रा एक के बाद दूसरे को अदा करो, इसलिए कि ये दोनों फ़क़्र और गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे भट्ठी लोहे, सोने और चांदी के मैल को मिटा देती है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। ये रवायत सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 810, सुनन नसई हदीस नंबर 2631 पर मौजूद है और इसे शेख अलबानी ने सही करार दिया है। ये दूसरी फजीलत है कि अगर कोई शख्स हज करता है, उम्रा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों नेकियों की वजह से इंसान के गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है। तीसरी फजीलत या तीसरा जो इंसान को हज की वजह से फ़ायदा हासिल होता है वो यह है कि ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल कौन सा है? हज है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर पूछा गया कि उसके बाद कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहादिन फ़ी सबीलिही, यानी अल्लाह की राह में जिहाद करना। पूछा गया फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जुन मबरूर। ये रवायत सही बुखारी में 1519 नंबर हदीस है और इसी तरह से सही मुस्लिम में 83 नंबर की हदीस है। हज की तीसरी फजीलत यह है, चौथी फजीलत यह है कि हज सबसे अफजल जिहाद है, सबसे अफजल जिहाद है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, हम ये समझती हैं कि जिहाद करना सबसे अफजल अमल है, तो क्या हम जिहाद न करें? यानी ख़वातीन के ताल्लुक़ से पूछा उन्होंने कि क्या हम औरतें, जिहाद इतना फजीलत याफ्ता अमल है और हम उसमें शिरकत नहीं कर पाती हैं, तो क्या हम जिहाद में शिरकत करके जिहाद की फजीलत को हासिल ना करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाकिन अफ़ज़लुल जिहादी हज मबरूर, लाकिन अफ़ज़लुल जिहादी हज मबरूर, यानी अफ़ज़ल तरीन जिहाद हज मबरूर है। ये रवायत सही बुखारी में 1520 नंबर पर मौजूद है।
इसी रवायत के दूसरे अल्फाज में है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, क्या औरतों पर भी जिहाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन उन पर ऐसा जिहाद है जिसमें लड़ाई नहीं है, और वो हज और उम्रा है। यह रवायत सुनन इब्न माजा में है और हदीस नंबर है 2901। शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। उमर रसीदा, कमज़ोर और औरत का जिहाद हज व उम्रा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहादुल कबीरी व दईफ़ी वल मरअ अल हज वल उम्रा, यानी उमर रसीदा, कमज़ोर और औरत का जिहाद हज और उम्रा है। ये रवायत सुनन नसई में 2626 नंबर पर मौजूद है और शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। इसी तरह से हज की एक फ़जीलत यह है कि जो लोग हज करते हैं वह अल्लाह के मेहमान होते हैं और उनकी दुआ कबूल होती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाहि वल हाज्जु वल मुअतमरु वअब्दुल्लाह दआहु फ़अजाबूहु व सअलूहु फ़अताहुम, यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, हज करने वाला, उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया तो उन्होंने हाज़िरी दी, उन्होंने अल्लाह से मांगा तो उसने उन्हें अता किया। ये रवायत सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर है 2893। शेख अलबानी ने इसे हसन करार दिया है। अब हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वफ़दुल्लाहि सलासा अल गाज़ी वल हाज वल मुअतमिर, यानी 3 शख्स अल्लाह के खुसूसी मेहमान होते हैं, जिहाद को जाने वाले, हज के लिए सफ़र करने वाला और उम्रे को जाने वाला। यह रवायत सुनन नसई में मौजूद है। हदीस नंबर है 2625। शेख अलबानी ने इसे सही नसई में सही करार दिया है। मज़ीद हज करने की एक फ़जीलत यह है कि हज के दौरान अगर इंसान की मौत आ जाए तो इंसान सीधा जन्नत में चला जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खरज हाजन फमाता कुतिब लहू अजरुल हज इला यौमिल क़ियामा व मन खरज मुअतमिरन फमाता कुतिब लहू अजरुल मुअतमिर इला यौमिल क़ियामा, यानी जो हज के लिए निकला और वफ़ात पा गया उसके लिए क़यामत तक हज का सवाब लिखा जाएगा, और जो उम्रा के लिए निकला और वफ़ात पा गया तो क़यामत तक उसके हक़ में उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। ये अबू याला की हदीस है। इसे शेख अलबानी ने सही तरगीब व तरहीब में सही करार दिया है। हदीस नंबर है 1114। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम फ़जीलत है कि अगर आप हज के लिए जाते हैं तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दौरान हज अगर वफ़ात पा जाते हैं तो क़यामत तक हज और उम्रा करने का सवाब आपको हासिल होता रहेगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक दूसरी हदीस है। वो बयान करते हैं कि एक आदमी जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफ़ात में वक़ूफ़ किया, उसे अचानक उसकी ऊँटनी ने नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वो वफ़ात पा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन व कफ़िनूहु बिसौबैहि वला तुख़म्मिरू रासह वला तुहन्नितूहु फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बिया, यानी पानी और बेरी के पत्तों से उसे गुस्ल दो, एहराम ही के 2 कपड़ों में कफ़न दो, खुशबू न लगाना, न उसके सर को छुपाना, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत में उसे लब्बैक कहते हुए या तलबिया पुकारते हुए उठाएगा। ये सही बुखारी में हदीस नंबर है 1849 और इसी तरह से 1850 और इसी तरह से सही मुस्लिम में मौजूद है और सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 1206। आप गौर करें कि हज की कितनी बड़ी फ़जीलत है कि अगर आप हज के लिए जाते हैं तो आपके साबका सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर आप हज मबरूर के शर्फ से महजूज़ होते हैं तो आप सीधा जन्नत में जाते हैं। लेकिन दौरान हज अगर आपकी वफ़ात हो जाती है तो आप क़यामत तक हज का सवाब पाते हैं, और क़यामत में जब आपको दोबारा उठाया जाएगा तो उस मौके से आप तलबिया पुकारते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होंगे। मज़ीद एक रवायत हज के ताल्लुक़ से जो बहुत अजीम रवायत है आपके खिदमत में पेश करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम बैतुल्लाह का क़स्द करके घर से रवाना होते हो तो तुम्हारी सवारी के हर हर कदम पर अल्लाह ताला एक एक नेकी लिख देता है। यानी अगर आप किसी चीज़ से चलते हैं, जिस सवारी पर सवार होते हैं, तो एक एक कदम के बदले एक एक नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखता है और एक एक गुनाह माफ़ कर देता है। और जब तुम वक़ूफ़ अरफ़ा कर रहे होते हो तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल आसमान दुनिया पर आकर फ़रिश्तों के सामने हुज्जाज किराम पर फ़ख्र करते हुए फ़रमाता है, देखो ये मेरे बंदे हैं जो दूर दराज से परागंदा हालत में और गुबार आलूद होकर मेरे पास आए हैं। ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, मेरे अज़ाब से डरते हैं, हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं है, और अगर ये मुझे देख लेते तो फिर इनकी हालत क्या होती। फिर अगर तुम्हारे ऊपर तह दर तह रेत के ज़र्रात के बराबर या दुनिया के अय्याम के बराबर या बारिश के कतरों के बराबर गुनाह हो तो अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को तुमसे धो देता है, और जब तुम जमरात को कंकरियाँ मारते हो तो उसका अज्र अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा करते हो, हर बाल के बदले तुम्हारे लिए एक नेकी लिख देता है। फिर जब तुम तवाफ़ करते हो तो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाते हो जैसा कि तुम अपनी माँ के पेट से गुनाहों से बिल्कुल पाक पैदा हुए थे। ये तबरानी की रवायत है। इसे शेख अलबानी ने सहीहुल जामी सगीर हदीस नंबर 1360 में हसन करार दिया है। आप गौर करें कि ये किस कदर अजीम रवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हाजी को कदम कदम पर नेकी लिखता है, कदम पर उसके गुनाहों को माफ़ करता है, जन्नत का मुजदा सुनाता है, फ़रिश्तों पर फ़ख्र जताता है। हालांकि इंसान और इंसानों की हालत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हज और उम्रे के ताल्लुक़ से इन फ़ज़ाइल को हम समझें और ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा इस सआदत को हासिल करने के लिए कोशिशें करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तो हम